you this. Tell me, how many of you know what happened after fertilization? And where does fertilization take place? कहाँ fertilization होती है? Who can tell me? In humans. I'm talking about humans. Yes, exact location. I'm asking about the exact location. Don't tell me it's in fallopian tube. Don't tell me it's nearby uterus. Exact where it takes place. कहाँ पर होता है actually? Yes. Your lips से someone is saying but you are not audible. जिसको आते just खड़े हो जाओ और वहीं से बोलो. Yes बेटा. Ampulla. Yes. So we can say where does fertilization take place? So it's bit near to the answer. That's nice. Sit down beta. So we can say it is fertilization. देखो बेटा small points है. These are the small points, but these are very important. Note down these points. आपके exam point of view उससे भी important है, also competitive exam point of view से भी important है. ठीक है? So where does fertilization take place? It take place if I say fallopian tube. तो ये तो वो हो गया कि where do we live? We say we live on earth. अर्थ में कहाँ रहते हो? Then you say Asia. एशिया में कहाँ रहते हो? इंडिया. इंडिया में कहाँ रहते हो? पंजाब. पंजाब में कहाँ रहते हो? Then we have to move or we have to narrow down our search. So हम सीधा ही वहां जाएंगे कहां पर होता है. ठीक है? So let's see here. Ampullary isthmic junction. So it's the place where fertilization takes place. Okay? इसको नोट डाउन करो बेटा. फर्स्ट पॉइंट, where does fertilization take place? Ampullary isthmic junction. It's the place. Now we are saying this is egg and this is sperm. Yes? Fertilization means what? Fusion of these two? Yes? Both are gametes. This is female gamete, this is male gametes. The fusion of these two results into what? Something else. ना ये egg रहेगा, ना ये sperm रहेगा. But during the course of this, थोड़ा सा इसको हम पीछे लेके जाते हैं. ठीक है? So where is this egg? ये egg है कहाँ पर? So let's go here. सब ध्यान से देखो everyone. This is our ovary, female ovary. ठीक है? I think everyone can easily draw this structure. है ना? सबको आता है ये structure? Female reproductive system का? I think everyone should, huh? Bio के student, you should know how to draw this. आता है सबको ये structure? Say yes or no? Yes. So that will be easy for me then, huh? So ये तो मेरे लिए बहुत easy हो गया. So it is somehow look like this. ठीक है? So in this ovaries, what happened? ये रहा हमारा egg. ठीक है? Every month, our body or we can say our ovary release egg. यही होता है. Ovary release करती है क्या? दोनों ovaries release करती है? Both ovaries release egg? Yes or no? No. So every month क्या होता है? कौन सी ओवरी रिलीज करती है then? Which ovary release egg? अगर दोनों ओवरीज एग रिलीज नहीं करती, कौन रिलीज करता है? Yes, say it. Who will release egg then? Yes, you come बेटा ट्यूलिप से. पहले अपना नाम बताओ, बिकॉज आई फॉरगेट योर नेम. अब अपने फिर से री इंट्रोडक्शन करो.
स्पीक लाउड. अभी तो खाना भी खाया, पानी भी पिया. यस. वॉइस नॉट कमिंग क्लियरली. जितने पास आगे आवाज उतनी चली गई है. थोड़ा पीछे जाओ. गो बैक. नो स्पीक. समीशा. स्पेल कर दोगे? कैन यू स्पेल इट? समीक्षा. ओके, वट एवर योर नेम. सम तक तो मुझे समझ आ गया. सम दीक्षा या समीक्षा. इट इज क्लियर टू दैट, क्लोज टू दैट. Yes. So now you know that your name is according to me Sam Diksha. ठीक है? So yes. Now tell me the answer of that. Just they release every month you release alternatively. Alternatively. Either it can be left ovary or right ovary. Yes. That's good. Sit down, beta. So yes, it's fine. ठीक है? So it cannot be released by both the ovaries. ठीक है? एक ही ओवरी रिलीज करेगी. लेट्स टेक एन एग्जांपल. दिस ओवरी इज रिलीजिंग एग. ये एग रिलीज कर दिया. वेयर इट इज गोइंग? इन द फैलोपियन ट्यूब. यस, फैलोपियन ट्यूब में जा रही है. नाउ द क्वेश्चन इज, अब जो ये एग रिलीज हुआ है इसको हम कहते हैं इट इज सेकेंडरी oocyte. Yes, can we call it? Is it secondary oocyte? Because it is arrested in this stage ना. If you remember, आपने इससे पहले जो है सेल साइकिल की है, आपने इसका पढ़ा है. So you must know that secondary oocyte इस स्टेज पे जो है हमारा जो है जो एग है इट इज कन्फाइंड टू दिस स्टेज ओनली. अभी इसका एनाफेज आया नहीं होता. इट इज रिस्ट्रिक्टेड इन द मेटाफेज. इज इट क्लियर? सबको याद है? से yes or no? Secondary oocyte. Now how it get relief from this stage? इस स्टेज से कैसे वो एनाफेज में जाएगा? What it needs? इसको क्या चाहिए? Yes. Yes. तो सेकेंडरी oocyte से बेटा दिस इज द स्टेज वेयर इट इज अरेस्टेड. किसी को अरेस्ट कर लिया है, उसको जो है बाहर निकलना है. कौन सी स्टेज में है? मेटाफेज. ठीक है, मेटाफेज स्टेज में इट इज अरेस्टेड. नाउ इट हैज टू पास टू द एनाफेज स्टेज. इट हैज टू कंप्लीट इट डिवीजन एंड फॉर दिस इट वाज वेटिंग फॉर स्पर्म. तो जैसे ही स्पर्म आता है, स्पर्म फर्टिलाइज करता है, फ्यूज करता है, क्या होता है? इट प्रमोट और इट एक्टिवेट एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर. इसको लिखो, इसका फुल फॉर्म है एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर. एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर ये इसको एक्टिवेट करता है. बिकॉज ऑफ दैट दिस सेकेंडरी oocyte नाउ कैन पास टू द नेक्स्ट स्टेज. अब वो नेक्स्ट स्टेज पे जा सकता है. इट कैन मूव टू दैट स्टेज नाउ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हेन स्पर्म फ्यूज विद द when sperm fuse with the egg, how it prevents further sperms to fertilize with the egg. अब एक बार हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं पॉलीस्पर्मी, मींस एक एग से मोस्टली 99% एक ही स्पर्म फ्यूज करता है. लेकिन यहां तक, इफ आई से यहां तक अराउंड 100 स्पर्म्स रीच. कितने स्पर्म्स यहाँ पर पहुंचे हैं? 100 स्पर्म्स पहुंचे हैं. लेकिन ओनली 1 स्पर्म कैन फ्यूज विद द एग, रेस्ट कैन नॉट. व्हाट इज द रीजन? क्या रीजन होता है? यस, व्हाट्स द रीजन? एनी वन ऑफ यू कैन टेल मी और शैल आई टेल? अब यहाँ पर देखो बेटा, ध्यान से एग का स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं.
ये जो ओवा है उसके चारों तरफ एक लेयर है जोना पेलोसिडा. ओके. व्हेन स्पर्म फ्यूज विद दिस एग, जब फर्स्ट स्पर्म, आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट स्पर्म दैट इज फ्यूजिंग विद दिस एग, जैसे ही फ्यूज करता है व्हाट इट डज, इट चेंजेस द स्ट्रक्चर ऑफ जोना पेलिसिडा, स्ट्रक्चर ऑफ दिस जोना पेलिसिडा. अब सपोज कर लो सबने एक ही गेट से जाना था, ये गेट था, ठीक है, ये गेट था, सबने यहीं से जाना था, लेकिन जो फर्स्ट पर्सन हु एंटर्स इनटू दिस रूम और थ्रू दिस डोर, उसने क्या किया, इस गेट को ही अंदर से चेंज कर दिया, इसका लॉक चेंज कर दिया. तो क्या होगा, नो वन कैन एंटर इनटू दिस, और कोई अंदर ही नहीं जा पाएगा, बिकॉज जो फर्स्ट वाला था उसने उसका जो है स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया है. सो दैट्स हाउ दे प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी. तो पॉलीस्पर्मी नहीं हो पाती. इज इट क्लियर? Is it clear, beta? How it prevents polyspermy? By changing the structure of zona pellucida, and it is very important. ठीक है. Now, अब यहां तक हमने क्या पढ़ा? We studied that now it is promoted to the next phase. Fertilization happens and also prevention of polyspermy. How it prevent polyspermy? Now coming to the next. अब next क्या आता है? We can say, let's move ahead. अब इसके बाद क्या होगा, क्या स्ट्रक्चर बनेगा? नाउ फ्यूजन इज हैपन, फ्यूजन टेक प्लेस. अब क्या होगा, नाउ फ्यूजन हो चुकी है यहाँ पर. सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेज? यस, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है बेटा? यस. अब इसी स्टेज को मैं ये इरेज कर रही हूं, ठीक है, टू शो यू व्हाट हैपन नाउ. ध्यान से, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन हियर. So now see what is going to happen in this case. Now this egg fertilized with the sperm. Now sperm पूरा का पूरा अंदर जाता है with tail. हम क्या कहते हैं, हमने क्या पढ़ा कि only nucleus is needed. Yes, nucleus is needed for the genetic makeup. But whole thing, कौन कौन सी, tail, head, middle piece, सभी जो इसके साथ है वो इसके अंदर जाते हैं. ठीक है, लेकिन रहता कौन है अंदर जाके? दैट इज ओनली द न्यूक्लियस. ठीक है, दैट शोज अस, और दैट यू कैन सी इन द वी कैन से ऑफस्प्रिंग जेनेटिक मेकअप ऑल्सो लेटर ऑन. ठीक है, अब यहां पर जो हमारा बना है स्ट्रक्चर, ठीक है, जो हमारा एग हमने कहा सेकेंडरी oocyte था. सो व्हेन इट प्रमोटेड, तो क्या बनता है, एक तो हमारा एग है जो हम कहते हैं ओवा, वो बना, साथ में 2 पोलर बॉडीज बनती है, जो कि लेटर ऑन अपने आप हट जाती है, गायब हो जाती है. एंड हियर यू कैन सी वी हैव न्यूक्लियस, one is of ova and second is of sperm, or we can say one is of mother. ठीक है, we can say mother and the second one is of father. Okay, now what it forms? It forms first structure, that is we can say zygote. So zygote is now formed. This is the result of fertilization. Zygote is the result of fertilization. But कभी आपने सोचा, have you ever thought about this? जो हमारा zygote बनता है और जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट होता है, ब्लास्टोसिस्ट कहां पर आता है, यहाँ पर है ना, यूट्रस की वॉल में जाके इम्बेड होता है. कोई मुझे बता सकता है इम्बेडिंग और वी कैन से अटैचिंग आर द सेम थिंग और डिफरेंट थिंग? Can we say that blastocyst attached to the walls of the uterus, और ज्यादा सही ये है कि embedded into the wall of the uterus? Which one is the correct statement? So what do you understand by embed? Embed होना क्या होता है? ये मेरा हाथ है, let's say this is uterus. सब देखो ये uterus है, and let's say this is the blastocyst. ठीक है, if I am attaching it like this,
ये क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है ना, सीधा है ये, अटैच हो रहा है. बट नाउ दिस इज ब्लास्टोसिस्ट, दिस इज यूट्रस, और ये इसको थोड़ा सा पुश करके ऐसे एक अपने लिए केव जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, उसको गड्ढा करके काइंड ऑफ. सो दिस इज कॉल्ड एम्बेडिंग. कैन नाउ यू अंडरस्टूड, दिस इज एम्बेडिंग. ये क्या हो रही है, एम्बेडिंग हो रही है. तो वो ऐसे एम्बेड करता है इसके साथ. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई दिस ब्लास्टोसिस्ट एम्बेड हियर. बनना तो हमारा जो हमारा स्ट्रक्चर था, जाइगोट था, इट इज हियर. व्हाई इट इज नॉट एम्बेडिंग हियर, फेलोपियन ट्यूब में क्यों नहीं एम्बेड हो गया. व्हाई इट इज एम्बेडिंग हियर ओनली, क्यों हो रहा है यहाँ पर, ऐसा क्या प्रेजेंट था, व्हाट वाज प्रेजेंट इन द जाइगोट और वी कैन द नेक्स्ट स्टेजेस दैट इज मिसिंग हियर इन द ब्लास्टोसिस्ट. ब्लास्टोसिस्ट में क्या नहीं है जिसकी वजह से इट इज एम्बेडिंग हियर, नॉट हियर. And what was present in the structure after the zygote that makes it not attached to the walls of fallopian tube. सोचो क्या था ऐसा. आंसर आता है किसी को, एनी वन ऑफ यू नो द आंसर. ओके, आई विल टेल यू. ध्यान से देखो एवरीवन, और इसको बेटा बना लोगे तो इट्स बेटर. नाउ जाइगोट इज हियर, बट ये जो जाइगोट है, ये जो एग के साथ फ्यूजन हुआ है, इसके चारों तरफ स्टिल इट इज हैविंग जोना पेलोसिडा, and because of xenopellucida it is not going to attach here. ठीक है, जोना पेल्यूसिडा होने की वजह से it is not going to attach here. So even after this second we can say cleavage started. Cleavage start होती है like this, 4 cell, 8 cell, 16 cell, like this. Cleavage goes like this till 64 cell stage. तो यहाँ पर जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, इट इज 64 सेल स्टेज स्ट्रक्चर. अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, इसमें जब ये स्टेज आती है तो यहाँ पर ये जो भी हमारा जोना पेल्यूसिडा था, इट इज नाउ रिमूव्ड. जोना पेल्यूसिडा रिमूव्ड हो गया. इज रिमूव्ड. अब ये जब जोना पेल्यूसिडा रिमूव हुआ तो क्या हो गया, सो नाउ इट इज एक्सपोज्ड. अब ये एक्सपोज्ड है, so it can attach to the, or we can say embedded into the wall of uterus. uterus की wall में attach कर सकता है, embed हो सकता है. but here now structure कैसा है, it is like this. now this structure is like this. on one side we have many cells. एक साइड जो है बहुत सारे सेल्स आपको देखने को मिलेंगे ऐसे. it is like this. Now this cluster of cell is called ICM, inner cell mass. It is called inner cell mass. अब ये जो ring like structure है cells का, here you can see this is called trophoblast, जो boundary पे है, trophoblast. और यहाँ पर जो खाली जगह दिख रही है, the space that you are seeing here, this is खाली, filled with fluid. This is called blastocell. This is blastocell. So जो blastocyst होता है पूरा structure, it looks like this. It is comprises of 3 main parts: ICM, trophoblast, and blastocell. Now why these 3 structures are important? So let's पहले इसको बना लो बेटा. I want everyone to draw this structure. Bio में without structure you cannot remember things, especially this part. अगर बनाओगे नहीं, याद नहीं रहेगा. Okay.
So now अब इसमें लिखो, write down. So we have blastocyst. Make it like this. जैसे मैं बना रही हूँ, make it like this. Blastocell is just a fluid. ठीक है. उसके अलावा we have ICM, inner cell mass. We have trophoblast. Now what these two, we can say structure, do. Let's understand this also कि इनका काम क्या है. Why we have inner cell mass, why we have trophoblast in blastocyst. So there is a reason for that also. So let's understand that also. So trophoblast outer की एक boundary है. Okay. So we have studied about it. एक ring like structure है cell का. ICM, it's a cluster of cell. Yes, यही अभी हमने पढ़ा. So what does it mean? So ICM जो है, let's say ICM, what it forms and what trophoblast form. So let's understand this. Inner cell mass form germinal layers, जो हमारी स्किन की जो layers हैं, cells हैं. First ectoderm, सबसे पहले ectoderm बनता है, then endoderm and then mesoderm. Now what ectoderm does? Ectoderms जो आपका nervous system है, it is made up of this. Even your skin, nails, whatever you have, all are made up of this. Coming to endoderm, पहले endoderm पे आ जाते हैं. जो हमारे internal organs हैं, like we can say lungs, like we can say our gut lining, ठीक है, intestinal lining, these are made up of endoderm. ठीक है. Coming to mesoderm, mesoderm makes your muscles, M से muscles याद कर लो, heart, kidney. So these are the structure made up of, we can say, mesodermal layer. These are mesodermal in origin. Now what is the role of trophoblast then? अब trophoblast पे आ जाते हैं. ठीक है. What trophoblast does? मेन इसका रोल है टू फॉर्म एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक layers, or we can say membranes. What those membranes are? We have 4 membranes. We have 4 membranes. First is chorion, that is outermost layer. It is outermost layer. ठीक है. एम्ब्रियो के चारों तरफ it is present, and it is the thing that connect, और ये villi like finger like projection बनाती है, that makes contact with endometrium of uterus. Form villi like projection to connect with endometrium layer of, किसमें होती है एंडोमेट्रियम लेयर? यूट्रस. और क्या बनाएगी ये फिर? टू फॉर्म प्लेजेंटा. एंड प्लेजेंटा इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज it is the thing that helps embryo to survive, fetus to survive inside female body.
ठीक है, बच्चा ऑक्सीजन लेता है इनसाइड आवर बॉडी, इनसाइड द फीमेल बॉडी, कहां से ऑक्सीजन आ रही है? बिकॉज हवा तो है नहीं, सो इट इज गेटिंग थ्रू मदर्स बॉडी। ठीक है, एक्सक्रीट कर रहा है क्योंकि वो खा रहा है, अब दांत तो नहीं है लेकिन इट स्टिल टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द मदर्स बॉडी, सो इट इज एक्सक्रीटिंग आउट। अगर वो जो एक्सक्रीटा है अगर उसी के अंदर रहेगा जहां पर वो है सराउंडिंग में, सो इट विल बी पॉइजन फॉर दैट किड। तो वो भी निकालता है कौन? प्लेजेंटा के थ्रू निकलता है। ठीक है, मैनी थिंग्स, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, एवरीथिंग हैपेंस बिकॉज ऑफ प्लेजेंटा। बट इसमें अम्बिलिकल कॉर्ड का भी रोल होता है, दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन। सो फॉर ए टाइम बीइंग दिस इज द रोल दैट इज डन बाय कोरियन। एंड बिकॉज यहाँ पर जो बच्चा है उसके यहाँ से हमें कोरियन लेयर, और जो मदर है उसका भी यहाँ पर जो है रोल आ रहा है, यूट्रस उसका यूज हो रहा है, तो यहाँ पर जो प्लेजेंटा होता है उसको हम कहते हैं हीमोकॉर्डियल या कोरियोनिक प्लेजेंटा, क्योंकि इट इज फॉर्म ड्यू टू द इंटीमेसी ऑफ मदर एंड फीटस, और वी कैन से एम्ब्रियो, क्योंकि यहाँ पर बच्चा और मदर बोथ आर इन्वॉल्व। ठीक है, अब आ जाता है नेक्स्ट एम्ब्रियोनिक लेयर, व्हाट इज दैट? दैट इज एमनियन और एमनियन। ठीक है, तो व्हाट इट डज, it forms sac like structure around the embryo. It forms sac like structure around embryo. It is filled with amniotic fluid. amniotic fluid, कौन सा फ्लूइड है इसके अंदर? amniotic fluid is present here. And why fluid is required? क्यों फ्लूइड होता है? फ्लूइड इज बिकॉज एक तो एक्सचेंज, लाइक आई टोल्ड यू, खाना आता है जाता है, ऑक्सीजन आती है जाती है, बिकॉज ऑफ दैट फ्लूइड। ठीक है, एक्सेप्ट दैट अगर बाई चांस समहाउ मदर को चोट लगती है, मदर हिट करती है वॉल से या गिर जाती है, स्टमक जो है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, तो जो वाटर है, जो फ्लूइड है एमनियोटिक फ्लूइड, दैट एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर, वो बच्चे पे डायरेक्टली अटैक या डायरेक्टली इफेक्ट नहीं होने देता। ठीक है, वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब आपने एक सुना होगा एमनियोसेंटिस। एमनियोसेंटिस क्या होता है? इट्स अ टेक्निक। ठीक है, बच्चे का इंडिया में नहीं होता, वी डोंट यूज और इट्स नॉट प्रैक्टिस हियर इन इंडिया जेंडर रिवील करना बिफोर बर्थ, बट इन द फॉरेन कंट्रीज और अब्रॉड, so what they do, or even in India amniocentesis also we you know होती है just to check the is there any we can say abnormality in the kid or fetus। ठीक है, कि बच्चे के क्रोमोसोम सारे ठीक है नहीं है, उसको चेक करने के लिए भी we follow that। अब why we are taking amniotic fluid in that case? amniotic fluid हम क्यों लेते हैं? रीजन क्या है? amniotic fluid में जो बच्चा ग्रो कर रहा है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, कुछ सेल्स उसकी बॉडी के जो टूटते हैं, रिपेयर होते हैं, सम पार्ट, ठीक है, इट गोज इन द एमनियोटिक फ्लूइड। तो वो एमनियोटिक फ्लूइड में क्योंकि वो रिपेयर, और तो बच्चा कहीं नहीं जा रहा, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर, इट्स इनसाइड द फीटस और वी कैन से फीमेल वूम ओनली। सो ड्यूरिंग दैट कोर्स ऑफ डेवलपमेंट देयर इज, वी कैन से क्या होता है यहाँ पर, आपके जो बच्चे के सेल हैं वो टूटते हैं, रिपेयर होते हैं, और वेयर इट गोज इन द एमनियोटिक फ्लूइड। सो जब वो लैब टेक्नीशियन या डॉक्टर जो है उस फ्लूइड को लेते हैं, जब उसको एनालाइज करते हैं, दे कैन सी हाउ देयर क्रोमोसोम्स आर, कैसे उनके क्रोमोसोम्स है, कोई उनमें जो है एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। ठीक है, सो दे चेक दैट, एंड इन एज आई टोल्ड यू इन द अब्रॉड दे चेक द जेंडर थ्रू दैट ऑल्सो, कि बच्चे का जेंडर क्या है। ऑब्वियसली क्रोमोसोम चेक करेंगे, इफ इट्स अ बॉय सो क्या क्रोमोसोम आएगा? एक्स एंड वाई, इफ इट्स गर्ल सो इट इज एक्स एक्स, सो दे चेक थ्रू दैट ऑल्सो। ठीक है,
Now coming to the next layer, those two layers we can say they work together. ठीक है, जो last की two हमारी layers हैं, so yolk sac और allantois. Yolk sac and allantois. So basically ये दोनों ही क्या करती है, they form or they make umbilical cord. Umbilical cord. ठीक है, these two. अब इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली हम देखते हैं. थ्योरेटिकली वी हैव सीन. प्लीज इसको नोट कर लो बेटा, नोट डाउन दिस. इट्स वेरी कंसाइज एंड इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव फ्लो चार्ट. ठीक है, आपको बार बार पेजेस पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इफ यू मेक दिस. अदरवाइज यू विल स्पेंड योर टाइम ऑन टर्निंग ऑन पेजेस ओनली. So the structure I think I have already made for you and we will make again. ये देखो. So this is the thing I was talking about, chorion membrane. So यहाँ देखो ये रही, ठीक है, and it is forming villi like structure where it is embedding. It is embedding with the endometrium. Endometrium layer of uterus. Okay. And that's why they are now here forming placenta. And this placenta is what? It is hemochorionic placenta. As I told you, because both mother and fetus part is involved, that's why it is called like so. Okay. Now I'm highlighting this structure. जो मैंने आपको बनाया उसी को मैं highlight कर रही हूँ. So I'm highlighting this structure. This irregular structure is chorion membrane. This is forming, देखो villi like structure it is forming. This structure I was talking about. Now after this, इसके अंदर एक और structure है. That is sac-like. It's a sac-like structure that is inside this chorion membrane. That is amnion. It is having amniotic fluid. इसमें क्या है? Amniotic fluid present है. And this amniotic fluid act as shock absorber. ठीक है. Now here comes the embryo. यहां पर आता है बच्चा. This is embryo. ये embryo है. And with this you can see this rod like structure. It is what? It is umbilical cord. So this is the umbilical cord. And ये किससे बनी है? Yolk sac plus allantois. ठीक है. So this is the structure that I was talking about. And here we can say we are more appropriately talking about ये सारी layers कौन सी है? Trophoblast की origin से है. Originated from trophoblast. Is it clear to everyone now? These layers, 4 layers, and endoderm, ectoderm, mesoderm. Is it clear from where they are arising? Okay. So these are very important, beta. अगर आपको ये चीज समझ आ गई कौन सी वाली क्या बना रही है, then you can work on it. Any doubt in this? Yes, बेटा, कोई doubt है इसमें? Is it clear? Yes. Okay. So with this, I am ending this session now, beta. Okay, and all the very best for your exam. Okay, bye. Do well. Bye, beta.